السلام علیکم۔ آج ہم معاشی ترقی کے بارے میں پڑھیں گے۔ معاشی ترقی ہے کیا؟ معاشی ترقی جس کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہے۔ ترقی پذیر ممالک کی جو ترقی ہوتی ہے اس کو معاشی ترقی کہتے ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک سے جو ریلیٹڈ ہوتی ہے معاشی نمو کہلاتی ہے۔ تو معاشی ترقی کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے؟ معاشی ترقی کا تصور زیادہ وسیع ہے۔ ترقی میں نہ صرف معاشی نمو شامل ہے بلکہ زندگی کے دیگر شعبوں میں بعض مثبت تبدیلیاں بھی ہیں۔ حقیقت میں اس میں تمام شعبوں اور گوشوں کی ترقی شامل ہے۔ معاشی ترقی معاشی نمو کے تصور سے قریبی تعلق رکھتی ہے۔ یہ ملک کے سماجی معاشی ڈھانچے میں خوشگوار اور بڑھتی ہوئی تبدیلیوں کو بتاتی ہے۔ جہاں معیار زندگی میں مستقل اور دیرپا اضافہ اور منصفانہ نمو کو حاصل کیا جاتا ہے، معاشی ترقی کے لیے معاشی نمو ضروری شرط ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ معاشی ترقی ایک معیاری تصور ہے۔ معاشی ترقی کی تعریف یہ ہے کہ معیار زندگی میں اضافہ، اشیاء ضروریہ اور احتیاجات میں بہتری، ظلم و ناانصافی سے آزادی اور انتخاب کے زیادہ مواقع۔ معاشی ترقی کو ناپنے کا ایک بہت ہی صحیح طریقہ انسانی وسائل کی نوعیت ہے۔ معاشی ترقی کا مطلب نہ صرف معاشی نمو بلکہ ملک میں سماجی اور معاشی ڈھانچے میں بڑھتی ہوئی تبدیلیوں کے ہے۔ معاشی ترقی معیشت میں مقداری اور ساتھ ساتھ معیاری تبدیلیوں کو بھی بتاتی ہے۔ معاشی ترقی ایک طویل مدتی عمل ہے۔ معاشی ترقی کی صورت میں سماجی تبدیلیاں لازمی ہیں۔ اس میں اچھے کام یا ملازمتیں، غذا کی دستیابی، اچھی صحت، تعلیم اور معیار زندگی مستقل اور لگاتار بہتری کو دیکھا جاتا ہے، اور ماحولیاتی مسائل بھی ضروری توجہ کے باعث بنتے ہیں۔ معاشی ترقی کے پیمائش کے طریقے۔ کس طرح سے ہم معاشی ترقی کی پیمائش کرتے ہیں؟ کون سے انڈیکیٹرز ہیں جن کی مدد سے ہم معاشی ترقی کے بارے میں معلومات یا مددگار ثابت ہوتے ہیں؟ تو معاشی ترقی کا تعلق جو ترقی پذیر ممالک سے ہیں، اور معاشی ترقی کی پیمائش کے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ میں جو اشاریے یا اظہاریے لیے گئے ہیں وہ مختلف ہیں۔ قومی آمدنی، فیکس آمدنی۔ تو سب سے پہلے ہم قومی آمدنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ نیشنل انکم۔ قومی آمدنی کیا ہے؟ اشیاء خدمات سے حاصل ہونے والی پیداوار جو دی گئی مدت یعنی کہ سالانہ ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں۔ تو اشیاء خدمات کیا ہوتے ہیں؟ اشیاء جو 3 شعبوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ 3 شعبے ہیں: زرعی شعبہ، صنعتی شعبہ، خدماتی شعبہ۔ یہ تینوں شعبوں سے جو کچھ بھی پیداوار ہوتی ہے اس کی زرعی خدمات اور جو خدمات انجام دی گئی اس سے حاصل ہونے والی کمائی کو اس میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی کہ قوم کی آمدنی ہوتی ہے، اس کو قومی آمدنی کہتے ہیں۔ تو معاشی ترقی کو ناپنے کا پہلا پیمائشی ڈنڈا قومی آمدنی۔ اونچی قومی آمدنی معاشی ترقی کی اونچی راہ کی علامت ہے۔ اگر قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو معاشی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے برعکس عالمی معیشت کی ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک میں تقسیم قومی آمدنی کی بنیاد پر ہی کی جاتی ہے۔ کون لوگ ہیں جو قومی آمدنی کو معاشی ترقی کے لیے فیور میں ہیں؟ قومی آمدنی جس کا تعلق NNP اور GNP سے ہے۔ NNP نیٹ نیشنل پروڈکٹ اور GNP گراس نیشنل پروڈکٹ، یہ کہ
खाम कौमी पैदावार को इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से हम नेशनल कौमी आमदनी को जो है सो पैमाइश माशी तरक्की की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ कौमी आमदनी ही माशी तरक्की के लिए काफ़ी नहीं होती है, बल्कि इसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम भी अहमियत रखते हैं। रियल नेशनल इनकम, हकीकी कौमी आमदनी में इजाफ़ा माशी तरक्की का अहम इशारा है, क्योंकि फ़ीकस आमदनी के इन्हिसार भी कौमी आमदनी पर होता है। कौमी आमदनी के ताल्लुक़ में तैयार शुदा आखिरी अशिया और खदमात से होता है। तो इसके लिए कौमी आमदनी के साथ साथ हकीकी कौमी आमदनी और रियल पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? फ़ीकस आमदनी। फ़ीकस आमदनी यानी कि जिस तरह इसको मालूम करने के लिए हम नेशनल इनकम जो है, कौमी आमदनी जो है, टोटल जुमला कौमी आमदनी को जुमला आबादी से तक़सीम करने पर फ़ीकस आमदनी हासिल होती है। तो फ़ीकस आमदनी से क्या मालूम होता है हमको कि एक पर्सन की इनकम क्या है। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि नेशनल कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है, लेकिन फ़ीकस आमदनी में कमी आ जाती है। तो इस तरह से हम डेफिनेटली पूरी तरह से माशी तरक्की का जायज़ा लेना नामुमकिन होता है कि माशी तरक्की सिर्फ कौमी आमदनी के इजाफे से ही मापी जा सकती है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो है यानी कि फ़ीकस आमदनी जो है वो भी अहमियत रखती है। उससे जैसे एक पर्सन का मेयार मालूम होता है, उसकी आमदनी कितनी है, वो खुश है या नहीं है। तो हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि पर कैपिटा इनकम में इजाफे के बाद भी जो है सो खुशहाली में इजाफ़ा हो रहा है या नहीं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन जो है खुशहाली से ताल्लुक़ रखता है। अब इसके साथ साथ टोटल आउटपुट भी इम्पॉर्टेंट होती है। सिर्फ नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम से हम इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जब टोटल आउटपुट यानी कि पैदावार में इजाफ़ा होता है तो पैदावार के इजाफे से रोज़गार के मौक़े फराहम होते हैं, उससे आमदनी में इजाफ़ा हो सकता है। तो पर कैपिटा रियल इनकम, पर कैपिटा रियल इनकम, पर कैपिटा रियल इनकम क्या है? रियल इनकम यानी कि हकीकी फ़ीकस आमदनी। हकीकी फ़ीकस आमदनी से हमको क्या पता चलता है कि एक आदमी की कितनी आमदनी है और वो किस तरह से कंज्यूम कर रहा है, मतलब उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, किस तरह से वो अपनी ज़रूरियात की तकमील कर पाता है। तो इसका ताल्लुक़ कीमतों से होता है। अगर कीमतों में इजाफ़ा, आमदनी के इजाफे के साथ कीमतों में अगर इजाफ़ा होता है तो परचेसिंग पावर कम हो जाता है और लिविंग स्टैंडर्ड कम होती है। तो अब हमको ये मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि पर कैपिटा इनकम यानी कि फ़ीकस आमदनी जो लॉन्ग पीरियड टाइम में है, कौन इसके फेवर में है। तो मकसद क्या होता है माशी तरक्की का कि माशी तरक्की में इजाफे की वजह से, इजाफ़ा कब होता है, कब माने रखता है माशी तरक्की, कब माने रखती है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े और उनकी कंजम्पशन पावर बढ़े, यानी कि खर्च करने की सलाहियत बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकें और उनकी ज़रूरियात की तकमील कर सकें। क्योंकि ख़र्च जो होता है, एक का खर्च दूसरे शोबे के लिए आमदनी का बास बनता है। और सबसे एक मकसद यही होता है कि जब हम कंज्यूम ज़्यादा करते हैं तो इनकी हमारी ख्वाहिशात की तकमील हो रही है। तो जब ख्वाहिशात की तकमील होती है तो तशफ़ी हासिल होती है, जिससे खुशहाली में इजाफ़ा होता है। कुछ लोग जो है सो इसके अगेंस्ट हैं कि पर कैपिटा रियल इनकम को हम जो है सो माशी तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं कह सकते हैं। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि पर कैपिटा इनकम में इजाफ़ा हो रहा है, आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर जो पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है तो इसमें क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम होता है कि आमदनी में इजाफे के साथ साथ उसकी तकसीम में बेहतरी है या प्रॉब्लम है। अगर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और साथ साथ आमदनी बढ़ रही है
ये मीनिंगलेस हो जाती है। और इसके साथ साथ इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये देखना ज़रूरी है कि जो आमदनी है नेशनल इनकम में इजाफा हो रहा है तो किस तरह से आमदनी की तकसीम हो रही है, इक्वल तकसीम हो रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यह प्रॉब्लम है नहीं कि हर कोई जो है उससे फ़ायदा हासिल कर रहा है या नहीं, कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं या फिर गरीब जो है वो गरीब होते जा रहे हैं। तो इससे नेशनल इनकम हो या फिर पर कैपिटा इनकम हो, इसमें इजाफा हो के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो कौमी आमदनी जो है नेशनल इनकम जो है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कौमी आमदनी में इजाफे की वजह से कोई भी मसला हल नहीं होगा, यानी कि मीनिंगलेस रहेगा, कि कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो आमदनी के इजाफे के साथ साथ उसकी तकसीम जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अहमियत रखता है। मसावी तकसीम होना ज़रूरी है ना, तमाम लोग जो है सो मिलके तमाम लोग उससे इस्तेफ़ादा हासिल करना, हर एक को जो है सो सोर्सेस मिलना। तो इसके बाद ये सोचा गया कि इकोनॉमिक वेलफेयर इज़ इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि वेलफेयर में इजाफा किस तरह से होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वेलफेयर में कब इजाफा होता है? जब आमदनी में इजाफा होता है। आमदनी के इजाफे के साथ हकीकी आमदनी में इजाफा होता है और लोगों की मतलब तकसीम इक्वल होती है। तो ऐसी सूरत में वेलफेयर में इजाफा होता है। तो वेलफेयर के लिए सिर्फ माशी अशिया ही नहीं बल्कि गैर माशी अवामिल भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। परचेसिंग पावर इंक्रीज़ होना है, तो जब इन्हें क़ुव्वत ख़रीदी में अगर इजाफा होता है तो इसका ताल्लुक़ जैसे अशिया की कीमतों पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर आमदनी में इजाफा हो रहा है, कीमतों में मज़ीद इजाफा हो रहा है तो इससे परचेसिंग पावर घट जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो स्टेबिलिटी जो है, प्राइस स्टेबिलिटी अगर कमज़ोर होती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, लोगों को क़ुव्वत ख़रीदी कम हो जाती है। तो क़ुव्वत ख़रीदी इम्पोर्टेंट रखती है। ये जो है कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है, इसको इजीली हम जो है सो मेजर कर सकते हैं कितना जो है सो माशी तरक्की हुई, ये देखा जा सकता है। तो मैं ऑक्यूपेशनल पैटर्न के थ्रू भी मेजरमेंट किया जा सकता है। ऑक्यूपेशनल पैटर्न क्या है? 3 हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्टियरी सेक्टर है। तो प्राइमरी यानी कि बुनियादी शोबा जिसे कहते हैं, ज़राई शोबा से ताल्लुक़ रखता है। ज़राई के साथ साथ फिशरीज़, फॉरेस्ट, जंगलात, माइनिंग वगैरह भी इसमें शामिल किया जाता है। सेकेंडरी शोबा मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड, कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग वगैरह इसमें शामिल होते हैं। सनती शोबा टेरिटरी सेक्टर जो कि खदमाती शोबा है, खदमात में तमाम किस्म के ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, जो भी पॉपुलेशन वर्क करती है, ये तमाम चीज़ें उसमें टेरिटरी सेक्टर में शामिल होती हैं। उसके बाद सब देखा गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंसानी तरक्की अशारिया, इंसानी तरक्की अशारिया के इंसान ह्यूमन इज़ ए कैपिटल, यानी कि इंसान भी क्या है? एक कैपिटल है ना। काम करने के लिए इंसान का होना ज़रूरी है। तो किस तरह से उसके काम में बेहतरी लाई जा सकती है? जो मतलब मज़दूर काम कर रहा है तो उसको उसके मेहनत में कारकर्दगी पैदा करने के लिए 3 चीज़ों को अहमियत दी जाती है। वो है बेहतर मेयार ज़िंदगी, तालीम और मुतवक़्क़ हयात। मुतवक़्क़ हयात का जो ताल्लुक़ है, यानी कि उम्र जो होती है, तो अगर उम्र में इजाफ़ा होता है तो उसकी वजह यह है कि उसको बेहतर ग़िज़ा फ़राहम हो रही है, तिब्बी सहूलतें मुहैया हैं, तो इंसान की उम्र में बेहतरी होगी। और जब तिब्बी सहूलतें मुहैया होती हैं और एक मेहनत करने वाला मज़दूर जो सेहतमंद रहता है तो उसके काम करने का जो तरीक़ा होता है, काम करने की जो कैपेबिलिटी रहती है, उसकी सलाहियत रहती है, वो दूसरे लोगों से
ज़्यादा होती है। तालीम तालीम आम होने की वजह से स्किल्ड लेबर ज़्यादा होते हैं। अगर स्किल लेबर का हम इस्तेमाल करते हैं तो पैदावारी में इजाफ़ा होता है। तो इस तरह से पैदावारी में इजाफ़ा करने के लिए और इंसान का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इंसानी तरीक़े शारिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अहमियत दी गई है। प्रोफेसर महबूबुल हक ने इसको इम्पोर्टेंस दी है। इसमें हम तीनों जो बेहतर मेयार ज़िंदगी, तालीम और मुतवक्का हयात, 3 चीज़ों को शामिल करते हैं। तो जो मतलब इम्पोर्टेंट होता है वो हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर रहता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर होता है कि एक इंसान बेहतर ज़िंदगी वो इंसान गुजार सकता है अगर वो तालीम याफ्ता होता है और उसकी सेहत अच्छी होती है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, कि आमदनी ज़्यादा बेहतर रहती है, तो वो कारगर साबित हो सकता है। माशी तरक्की की पैमाइश के लिए इसको भी अहमियत दी गई। फ़िज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ज़िंदगी के मादी मियार का इंडेक्स। तो माशी तरक्की का ये गैर आमदनी इशारिया है क्योंकि ज़िंदगी के मादी मियार को बतौर इशारिया इस्तेमाल करें। माशी तरक्की को नापने के लिए हम 3 चीज़ों पर मबनी फ़िज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी कि ज़िंदगी के मादी मियार का इंडेक्स मालूम कर सकते हैं। उसके लिए है ज़िंदगी की तवक्कुह, दूसरा है तफरीह अमवात और ख़वानीन। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, तो पॉवर्टी यानी गरीबी का जो तस्वुर होता है वो हम किस तरह से मालूम करते हैं कि कितने लोग जो है सो पुअर हैं, कितने लोग रिच हैं, तो ये मालूम करना भी हमको ज़रूरी हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये है कि लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ना। परचेसिंग का मतलब बढ़ता है जब इनकम में इजाफा होता है, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम में इजाफा होता है, पर कैपिटा इनकम में इजाफा होता है, रियल नेशनल इनकम यानी कि हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा होता है, तो बहुत से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इजाफा होता है, मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है। यानी कि हम माशी तरक्की की जो पैमाइश करते हैं उसका हमारा मकसद ये रहता है, ऑब्जेक्टिव यही है डेवलपमेंट करके हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो सके। अब हम ये जानेंगे कि कौन सा जो इंडिकेटर है वो बेस्ट है मेजरमेंट के लिए। तो ये कहना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा कम। एक तरह से हर इंडिकेटर और हर इशारिया इम्पोर्टेंट होता है, इसके तकाबुल करना नामुमकिन है। फिर भी हम कह सकते हैं कि GNP और पर कैपिटा इनकम जो है सो बेस्ट मेथड है। थैंक यू।